So yesterday we were discussing about modified allele, unmodified allele, right? Unmodified allele. What is this unmodified allele? Unmodified allele means dominant allele. Dominant allele is called unmodified allele. For example, capital T. And the modified allele. Modified allele means recessive allele. Recessive allele, that is a small t. For example, small t. So modified allele or recessive allele is having three types of conditions. Dominant allele is definitely expressing the character. Why dominant allele always express the character? Because dominant allele make the enzyme necessary for conversion of substrate. Dominant allele express the character. Dominant allele always express the character. Always express the character because it make enzyme necessary for conversion of substrate. Yes, कोई एक सबस्ट्रेट है समझिए, वो सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैरेक्टर आएगा. सो जनरली हम क्या सोच रहे हैं मालूम, कैपिटल टी कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हैं हम. एक्चुअली कैपिटल टी इज नॉट कंट्रोलिंग द कैरेक्टर. कैपिटल टी से जो एंजाइम बन रहा है वो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है. जीन इज नॉट कंट्रोलिंग द कैरेक्टर, जीन प्रोडक्ट इज कंट्रोलिंग द कैरेक्टर मोर करेक्टली. तो यहां पे बता रहे जा रहा है डोमिनेंट अलील ऑलवेज एक्सप्रेस द कैरेक्टर बिकॉज इट मेक एंजाइम. Whereas modified allele, there are three conditions. Modified allele shows any one of the following condition. Any one of the following condition. जो मॉडिफाइड अलील है वो एक कंडीशन दिखाएगा. कौन सी कंडीशन दिखाएगा जरा देखो. नंबर 1, may be producing normal but less efficient enzyme. May be producing normal but less efficient enzyme, या may be producing non-functional enzyme. May be producing non-functional enzyme. Or may not be producing any enzyme. Not producing any enzyme. Any enzyme. बहुत सारे बच्चे जो है ये वाला जो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं और डाउट ज्यादा पूछते हैं. ये पैराग्राफ में मैं बिल्कुल क्लियर करके ही आगे जाना चाह रहा हूं. ये पैराग्राफ, अनमॉडिफाइड अलील इज इक्वल टू डोमिनेंट अलील
and modified allele is equal to recessive allele. And dominant allele always express the character because it make the enzyme. Dominant allele always express the character, whereas modified allele fails to express the character. Why it fails to express the character modified allele? Because it show any one of the following condition. जैसे कि मॉडिफाइड एलील बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, लेकिन लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, या एंजाइम ही नहीं बना रहा है. आप बोल रहे होंगे ये एंजाइम क्यों आ रहा है बीच में? जीन की बात करना, जीन कंट्रोल कैरेक्टर. सो एंजाइम, व्हाई एंजाइम इज कमिंग? हाउ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड? Gene control character by making enzyme. How you are writing? So you said I am writing by using pen. So pen is writing. तो मैं बोलूंगा pen is not writing. Actually the refill, जो refill है, ink है, वो writing कर रहा है. तो gene is controlling character बोल सकते हैं आप. But what is more correct? Gene product is controlling more character. More correctly, gene product is controlling the character, not directly the gene. समझ में आ गया? कैपिटल टी, ऑफ कोर्स कैपिटल टी कंट्रोल टॉल हाइट, नो डाउट इन दैट. बट कैपिटल टी, हाउ इट कंट्रोल द टॉल हाइट? बाय मेकिंग एंजाइम. बाय मेकिंग एंजाइम. जबकि रेसेसिव एलील नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. हो सकता है वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा होगा, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा होगा, या एंजाइम ही नहीं बना रहा होगा. हो सकता है एनी वन ऑफ दीज 3 कंडीशंस. तो टेक्स्ट बुक में लिखा है आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस, इफ modified allele is producing normal but less efficient enzyme, in the first case modified allele is equivalent to unmodified allele. In the first case modified allele is equivalent to unmodified allele. क्योंकि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? एंजाइम तो बन रहा है ना. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? और एक बार देखिए, एंजाइम तो बन रहा है ना. ओके, लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, लेकिन एंजाइम तो बन रहा है. In the first case, modified allele is equivalent to unmodified allele, but in remaining 2 cases, phenotype definitely going to be affected. In the remaining 2 cases, हो सकता है वो एंजाइम ही नहीं बना रहा या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है. ठीक है, पहले मैंने क्या बताया? कैपिटल टी एक अनमॉडिफाइड एलील है, स्मॉल टी एक मॉडिफाइड एलील है, एंड कैपिटल टी एक अनमॉडिफाइड एलील है, डोमिनेंट एलील है. इट एक्सप्रेस द कैरेक्टर बाय मेकिंग नेसेसरी एंजाइम फॉर कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट. यस, ठीक है. आपकी टॉल हाइट कब आएगी पता है? आपकी टॉल हाइट जब आएगी जब कोई जीन, जो टॉल हाइट के लिए जो जीन है, जब वो एंजाइम बनाएगा तो टॉल हाइट आएगी. समझ में आ गया? पेन से राइटिंग आप तभी कर सकते हैं जब पेन में इंक है. जस्ट पेन रख के घूम रहे हैं आप, लिखना ही नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इंक ही नहीं है उसमें, तो कोई यूज नहीं है उसका. सपोज यू आर हैविंग टॉल जीन, बट दैट जीन इज नॉट एक्सप्रेसिंग. ऐसा भी हो सकता है समटाइम. सो डोमिनेंट अलील जो है एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि वो एंजाइम बना रहा है, जबकि रेसेसिव अलील के मैं 3 कंडीशन बता रहा हूं. रेसेसिव अलील को मैं और एक नाम क्या दे रहा हूं? मॉडिफाइड अलील. शो हाउ मेनी कंडीशंस? 3 कंडीशन. मे बी प्रोड्यूसिंग नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम, और मे बी प्रोड्यूसिंग नॉन फंक्शनल एंजाइम, और नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एंजाइम. बट इन द फर्स्ट केस जहां पर एंजाइम बन रहा है, लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, इन द फर्स्ट केस modified allele is equivalent to unmodified allele. Phenotype is not getting affected, but in remaining 2 cases phenotype is going to be affected. आया समझने? किसी को डाउट है यहां तक? जल्दी से पूछ लीजिए. दिस इज क्लियर? क्लियर है सबको? लिख लिए? चलिए आगे लिखेंगे फिर.
In the first case, in the first case, modified and unmodified allele are equivalent. In the first case, modified and unmodified allele are equivalent. फर्स्ट केस मतलब एंजाइम बन रहा है, लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, ठीक है ना, एंजाइम बन रहा है बट लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है. इन द फर्स्ट केस मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड allele आर equivalent. So phenotype is not affected. So phenotype is not affected. इसलिए phenotype पे कोई भी effect नहीं होगा. But in remaining two cases, modified allele fails to express the character. अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. देखिए आपको, सपोज कोई प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैरेक्टर कौन सा आएगा? नो डाउट 100% सारे बच्चे बोलेंगे ये तो टॉल आएगा. चलो टॉल लिख दिया मैं. डॉर्फ क्यों नहीं आ रहा, जबकि स्मॉल टी भी है ना इधर? सिंपल सवाल कर सकते हैं ना आप, ये क्वेश्चन कर सकते हैं. स्मॉल टी भी है यहां पर, तो डॉर्फ क्यों नहीं आ रहा? तो आप बोलेंगे कैपिटल टी टॉल है, डोमिनेंट है, इसलिए कैरेक्टर आ रहा है. लेकिन साइंटिफिक रीजन देना चाहिए व्हाई स्मॉल टी इज नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर. स्मॉल टी इज नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर बिकॉज ऑफ टू रीजंस. मे बी प्रोड्यूसिंग नॉन फंक्शनल एंजाइम और प्रोड्यूसिंग नो एंजाइम. एंजाइम ही नहीं बना रहा होगा, हो सकता है यहां पे स्मॉल टी एंजाइम ही नहीं बना रहा, या एंजाइम बन रहा है तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है. फर्स्ट केस में नहीं लेता. क्यों? फर्स्ट केस में क्या होता है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एलील बराबर, दोनों बराबर है. मैं बोला कैपिटल टी बड़ा भाई है, स्मॉल टी छोटा भाई है बोला मैं, और मैं बोला कि बड़ा भाई जो है हमेशा कैरेक्टर दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, छोटा भाई एक्सप्रेस नहीं करेगा कैरेक्टर्स. हमेशा बड़ा भाई कैरेक्टर दिखाना क्या जरूरी है? नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है क्या वही कैरेक्टर दिखाना. मे बी ऐसा भी हो सकता है दोनों मिलकर कैरेक्टर दिखा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि छोटा भाई कैरेक्टर नहीं दिखाएगा क्योंकि दो रीजन है. हो सकता है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा होगा, या एंजाइम ही नहीं बना रहा होगा. समझ जाएंगे कि बात. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. कल हम स्टार्ट करे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं. अब हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कोडोमिनेंस. या कोडोमिनेंस से पहले हम लिख सकते हैं मल्टीपल एलील. पहले मल्टीपल एलील्स. व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल एलील? more than two alternate forms of the same gene. More than two alternate forms of the same gene are called multiple allele. यहां पर भी मेंडल फेल हो जाता है, क्योंकि मेंडल बोलता था हर जीन के सिर्फ दो ही अलील होते हैं. मेंडल सेड ओनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलील, कैपिटल अलील एंड स्मॉल लेटर अलील, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. लेकिन ऐसा नहीं है, कई ऐसे अलील हैं जिनके मोर देन टू फॉर्म्स हैं, मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड मल्टीपल अलील. बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टीपल अलील इज blood groups in human.
blood groups in human. Blood groups are controlled by I gene present on chromosome number 9. क्रोमोसोम नंबर 9। आई जीन से ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है। कौन सी जीन से ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है? आई जीन से कंट्रोल होता है। ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय आई जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 and the I gene is having 3 forms। आई जीन के 3 फॉर्म्स हैं। आई जीन के 3 फॉर्म हैं। आई ए है, आई बी है एंड स्मॉल लेटर आई बी है। आई ए है, आई बी है, स्मॉल आई है। ठीक है ना? क्लियर? ब्लड ग्रुप जानते होंगे आप। ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन में 4 टाइप के हैं। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन एंड आई जीन के 3 फॉर्म्स हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है हियर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, whether all the 3 alleles IA, IB, small I, whether all the 3 alleles are present in a single individual? So answer is no, they are, all the 3 are not present in single individual, right? Any 2 out of 3, I gene is having 3 forms, but out of 3 any 2 are present in an individual. Any 2 are present in individual. Okay, क्लियर? तो लिखेंगे वो आउट ऑफ 3 alleles, any 2 alleles are present in an individual। आपकी मर्जी, आप इसमें से कौन से भी 2 ले लीजिए। 3 है यहां पर, 3 में से 2 ले लीजिए। 3 के 3 नहीं ले सकते आप। आउट ऑफ 3 allele, any 2 allele are present in an individual। ठीक है? and the gamete have any 1 allele। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है बात कि आई जीन के 3 फॉर्म हैं। आई जीन के 3 फॉर्म हैं, एक इंडिविजुअल में 2 फॉर्म हैं, एक गैमेट में एक ही है। ये कैसी बात हुई? आई जीन के 3 फॉर्म हो गए, एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 फॉर्म और उसके गैमेट में कोई एक ही होगा। तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट बात लिखना चाहिए, आई जीन is having 3 forms in a population। पूरा पॉपुलेशन चेक करे तो 3 फॉर्म मिलेंगे आपको आई जीन के। समझ नहीं बात? अब एक पूरा पॉपुलेशन है, उसमें आई जीन के 3 फॉर्म्स मिलेंगे, बट एन इंडिविजुअल any 2, but a gamete any 1। इंडिविजुअल में 2 अलील होंगे, गैमेट में 1 अलील होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है बुक में पेरेंट 1, पेरेंट 2। सपोज फादर and mother, what is the contribution in developing blood group of the child? बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड होता है, जरा देखिए यहां पर। सपोज पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है,
ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, और ये ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल मेक ए कॉलम फॉर दिस। जैसे मैं बताया गैमेट में कितने होते हैं आई जीन के फॉर्म्स, गैमेट हैव एनी वन, गैमेट हैव एनी वन। ओके, मान लीजिए पेरेंट वन फादर हैं या मदर हैं, कोई एक पेरेंट है, ये सपोज फादर ने दिया आई ए, फादर ने दिया आई ए, मदर ने भी दिया आई ए, तो दोनों पेरेंट से एक एक आया ना, आई ए, तो बच्चे के पास जमा हो गए आई ए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अब आई बात समझ में? दिस इज वन कॉम्बिनेशन ओवर। नाउ सेकेंड कॉम्बिनेशन, सपोज one parent is giving IA, one parent is giving IA, another parent is giving small letter I. In this case, offspring is having one IA, one small I, and in this case the baby's blood group will be A blood group. Because the small I is recessive allele, small I is recessive allele, not expressing. Suppose parent 1 is giving IB, another combination, and parent B is giving IB, and both together IB, and the child blood group become B. ठीक है ना? ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं पूरा टोटल करके दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो अगर एक पेरेंट IB दे रहा है, दूसरा पेरेंट स्मॉल आई दे रहा है, तो IB स्मॉल आई हो रहा है, ये IB स्मॉल आई आएगा, तो जीनोटाइप क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप बच्चे का बी ब्लड ग्रुप रहेगा, बिकॉज स्मॉल आई इज रेसेसिव allele, नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर। ठीक है ना? मतलब ये हुआ ए ब्लड ग्रुप के दो पॉसिबिलिटीज हैं। ए ब्लड ग्रुप इज हैविंग टू पॉसिबिलिटी, इट मे बी आई ए और इट मे बी आई ए स्मॉल आई। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप इज हैविंग टू पॉसिबिलिटीज, आई बी और आई बी स्मॉल आई। ठीक है ना? Next combination, suppose one parent is giving IA, another parent is giving IB, दोनों मिलके हो जाएगा IA IB। जब दोनों मिलके IA IB होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, AB। और अगर कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो बता दीजिए, आप आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई और कॉम्बिनेशन तो बता दो। चलो, एक पेरेंट ने दिया स्मॉल आई, दूसरे पेरेंट ने भी दिया स्मॉल आई, दोनों मिलके स्मॉल आई, बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। और कोई कॉम्बिनेशन है तो बता दो। खत्म हो गए कॉम्बिनेशंस। सो दैट मीन्स कितने फिनोटाइप होंगे ब्लड ग्रुप के, देयरफॉर हाउ मेनी फिनोटाइप्स इन ब्लड ग्रुप, phenotypes, I said phenotype, 4 टाइप लिखिए यहां पर बिलो दिस, therefore total phenotypes in blood group, total phenotype कितने होंगे, total phenotypes in blood group are 4 phenotypes हैं, और टोटल जीनोटाइप कितने हैं जरा बता दो, टोटल जीनोटाइप्स कितने हैं। जीनोटाइप्स मतलब आप ये काउंट करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप हैं, लेकिन फिनोटाइप कितने हैं, 4 ही हैं, ये एक है तो दो ही, एक ही फिनोटाइप काउंट करना। ठीक है, 4 फिनोटाइप आ रहे हैं, टोटल जीनोटाइप्स इन ब्लड ग्रुप 6। ओके, क्लियर है?
मल्टीपल अलील स्टडी करने के लिए तो कितने फिनोटाइप हो गए टोटल? 4 फिनोटाइप हो गए हैं। जीनोटाइप कितने हो गए? 6। टोटल जीनोटाइप 6 हो गए हैं, फिनोटाइप 4 हो गए। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय कोडोमिनेंस? Codominance. When two different alleles of a gene, when two different alleles of a gene equally express the character, when two different alleles, when two different alleles of a gene, when two different alleles of a gene are equally expressing the character, in heterozygous condition, in heterozygous condition, it is called codominance. It is called codominance. जब दो डिफरेंट अलील जो है, when two different alleles of a gene are equally expressing the character in heterozygous condition, we call this phenomena as codominance बोलेंगे इसको. For example, AB blood group in human, AB blood group in human controlled by the genotype, controlled by the genotype IA, IB. Here, IA and IB both are equally expressing the character. According to Mendel, when two different alleles of a gene will come together, only one will express the character and another remain silent. अगर दो अलील साथ में हैं, तो कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा, एक एक्सप्रेस नहीं करेगा. अकॉर्डिंग टू मेंडल, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ गए थे तो कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया, स्मॉल टी ने एक्सप्रेस नहीं किया. बट हियर टू डिफरेंट अलील्स ऑफ द सेम जीन, बोथ आर ऑफ कोर्स आई जीन, दोनों भी आई जीन है, लेकिन दोनों मिलकर कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, दोनों इक्वली कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे. इट इज ए केस ऑफ कोडोमिनेंस. हियर IA allele will make a sugar polymer on the RBC, and IB allele is also making a sugar polymer on RBC. ये RBC की बात क्यों शुरू हो गई? Because blood group is controlled by antigen. Blood group is controlled by antigen, and antigens are sugar polymers present on the surface of RBC. Blood group is controlled by antigens on RBC. एंटीजेंस और आरबीसी, ब्लड ग्रुप कंट्रोल हो रहा है एंटीजेंस, आरबीसी के एंटीजन से कंट्रोल हो रहा है. ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय एंटीजेंस ऑन आरबीसी, एंड द एंटीजेंस आर sugar polymers, and antigens are sugar polymers on RBC. What are antigens? Blood antigens क्या होते हैं? Sugar polymers होते हैं RBC के ऊपर. Chemically, if you want to define what is antigen, what is antigen? तो बोलेंगे antigens are sugar polymers. आरबीसी के ऊपर जो है एक पॉलीमर होता है, sugar polymer, that decide the blood group. If your blood group is A, that means you are having sugar polymer A on your RBC. And if your blood group is B, the sugar polymer on RBC will be different. दो टाइप के शुगर पॉलीमर हैं, यानी तो मैं सिंपल बोल सकता हूं दो टाइप के एंटीजन हैं. शुगर पॉलीमर
बी बोल सकते हैं उसको, एंटीजन भी बोल सकते हैं। कितने टाइप के ब्लड एंटीजन हैं? दो टाइप के ब्लड एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। वेदर एंटीजन ए, एंटीजन बी आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। सपोज एक ब्लड ग्रुप लिखा मैं इधर, ए बी एंड ओ, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम जीनोटाइप। ए का जीनोटाइप कितने हैं? आई ए इज आल्सो ए ब्लड ग्रुप, आई ए स्मॉल आई इज आल्सो ए ब्लड ग्रुप, आई बी इज आल्सो बी ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई इज आल्सो बी ब्लड ग्रुप, आई बी एंड स्मॉल आई। टोटल कितने जीनोटाइप हो रहे हैं? 6। अब मैं इनके आरबीसी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ओके, ऑफलाइन हो गया था, देखिए मैं बता रहा हूं, आरबीसी चारों में आरबीसी हैं। तो ये आई ए मिलके एक शुगर बनाएगा यहां पे आरबीसी के ऊपर। ये शुगर पॉलीमर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये शुगर पॉलीमर है। अब मैं शुगर पॉलीमर नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं एंटीजन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एंटीजन। इट इज एंटीजन ए। Whether antigen present on RBC of B blood group also same? No, it is slightly different. मान लीजिए इसका शेप कुछ ऐसा है एंटीजन का, कुछ ऐसा शेप का एंटीजन दिख रहा है। दिस इज एंटीजन बी। मतलब ये हुआ, आपका ब्लड ग्रुप जो भी हो, वो कौन डिसाइड कर रहे हैं? शुगर पॉलीमर और एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन बी है। एंड इफ ए बी ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट, देन व्हाट हैपेंस? If blood group is AB, then what happens? Both the sugar polymer will be there. One sugar polymer is A, antigen A. Another sugar polymer will be antigen B. दोनों एंटीजन आ गए इधर। अब O ब्लड ग्रुप में कौन सा शुगर पॉलीमर होता है बताइए? कौन सा भी ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं होगा। O ब्लड ग्रुप इज नॉट हैविंग ब्लड एंटीजन। क्लियर है? मतलब आप जो है एग्जाम के लिए वो स्टेटमेंट्स के लिए रेडी हो जाइए। आप स्टेटमेंट आएंगे, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय शुगर पॉलीमर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC and those sugar polymers are antigens, and there are two types of sugar polymers, sugar polymer A, sugar polymer B, and they will be slightly different in their structure. क्या दोनों सेम है? नहीं है। In case of AB blood group, I am calling AB blood group as codominance. AB blood group में को मैं codominance बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं codominance? Because in AB blood group what happens, both the different allele IA and IB equally express the character and they will make two different sugar polymers. जबकि IA small I अगर आ गया समझो, आई ए स्मॉल आई आ गया समझो, स्मॉल आई से कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो मैं शॉर्ट में कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि आई ए इज इक्वल टू आई बी, आई ए इज इक्वल टू आई बी बिकॉज बोथ आर इक्वली एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर, बट बोथ आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। समझने की बात? IA is equal to IB, that means both are co-dominant, equally expressing the character. But small I is recessive. So that's why we are writing IA
codominant to IB, but they are dominant over the small I recessive allele. ठीक है, चलेगा। इंपॉर्टेंट बात यही है, व्हेन वी स्टडी पॉपुलेशन, आई जीन के 3 फॉर्म्स होंगे। व्हेन वी स्टडी पॉपुलेशन, आई जीन इज हैविंग 3 फॉर्म्स, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। इंडिविजुअल हैव 2 फॉर्म्स, एनी 2 फॉर्म्स, आई ए ले लो आप, आई ए स्मॉल आई ले लो, कुछ भी 2 ही लेना। बट गैमेट में क्या होंगे, एक ही रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्लड ग्रुप के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम जो है प्लियोट्रॉफी बोल के एक कॉन्सेप्ट देखना है, प्लियोट्रॉपिक जीन बोल के। व्हाट इज मीन बाय प्लियोट्रॉपिक जीन? सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स। एक ही जीन से अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। सिंगल जीन कंट्रोलिंग मेनी फिनोटाइप्स, और यू कैन से सिंगल जीन controlling many phenotypes, it is also pleiotropic gene। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल है यहां पर स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स, starch synthesis, amount of starch inside the seed। ओके, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी बहुत ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को, ये पैराग्राफ में। ठीक है, आप वो पैराग्राफ देख लेना, पेज नंबर बता देता हूं मैं। ये पेज नंबर है, देखिए 78 का सेकंड पैराग्राफ है। सेवेंटी एट का सेकंड पैराग्राफ है। बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं ये पैराग्राफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है डरने का। क्या है यहां पर देखिए, कैपिटल बी, ये बात हो रही है किसकी? स्टार सिंथेसिस इन पी सीड। इफ पी सीड्स आर हैविंग जीनोटाइप कैपिटल बी in seeds, then there will be large seeds and round seeds। ये प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, समझना होगा, बाद में समझ में आएगा ये प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल कैसे है। कैपिटल बी रहेगा तो कौन से सीड रहेंगे? लार्ज सीड्स, राउंड सीड्स। और अगर स्मॉल बी रहेगा तो स्मॉल सीड्स, रिंकल्ड सीड्स रहेंगे, एक बात तो समझने आ गई, कैपिटल बी रहा तो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? लार्ज सीड और राउंड सीड। तो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो क्या आना चाहिए सीड यहां पर? वेदर इट विल बी लार्ज सीड और स्मॉल सीड। यहां पे लार्ज सीड आना चाहिए या स्मॉल सीड आना चाहिए? जल्दी से बोलिए, क्या आना चाहिए? मेंडल के हिसाब से, मेंडल की थिंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे लार्ज सीड आना चाहिए, बट यहां पे क्या आया? इंटरमीडिएट सीड आया, इंटरमीडिएट सीड, और राउंड सीड आया। सीड कौन सा होना चाहिए? राउंड आना चाहिए, है ना? तो मतलब यहां पे हर कैरेक्टर के, कैपिटल बी के हर जीनोटाइप के आगे में कितने कैरेक्टर लिखा हूं? 2 कैरेक्टर लिखा हूं, एक तो साइज और एक तो शेप। पहले ये क्लियर कर लीजिए। सो दैट मीन बी जीन इज कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स।
From this example, it is clearly we can say B gene is controlling how many character? 2 character. Shape and size. Shape and size. Large क्या है? Size है. Round क्या है? Shape है. नहीं है. So that means B seed is controlling shape and size. 2 characters are controlled by B gene. Therefore, it is a case of pleiotropic gene. What is meant by pleiotropy? Single gene controlling more than one character. हो रहा है ना more than one character. एक ही जीन बी जीन ने 2 कैरेक्टर कंट्रोल करके रखा है यहां पर, शेप और साइज दोनों भी. तो यहां लिखेंगे therefore B gene is controlling seed shape and seed size. Hence it is a case of pleiotropic gene. What is meant by pleiotropic gene? One gene controlling multiple character. हो रहा है ना भाई multiple character. खत्म नहीं हुई यहां पे बात, और एक है. B gene with respect to seed size. B gene with respect to seed size in case of star synthesis of pea seeds. In case of star synthesis of pea seed is an example of. अब बोलिए ये किसका एग्जाम्पल है? अगर कैपिटल बी आएगा, सिर्फ साइज के बारे में सोचिए भाई, शेप के बारे में मत सोचिए, ठीक है? कैपिटल सिर्फ साइज के बारे में. कैपिटल बी आया तो लार्ज, कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो इंटरमीडिएट, स्मॉल बी आया तो स्मॉल. मतलब ये डोमिनेंस का केस है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है क्या? ये को डोमिनेंस का केस है? किसका केस है ये? Hence it is a case of incomplete dominance. क्योंकि लार्ज सीड भी नहीं आ रहा यहां पर, स्मॉल भी नहीं आ रहा. जब नन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर्स इन F1 जनरेशन, जब दोनों भी पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आते तो इनकम्प्लीट बोलते हैं. जैसे कल हमने पढ़ा रेड फ्लावर क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन, नाइदर रेड नॉर व्हाइट, इंस्टेड दे फॉर्म पिंक फ्लावर. अगर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, वी कॉल इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यहां पे लार्ज भी नहीं आ रहा है, स्मॉल भी नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट. ठीक है? विद रेस्पेक्ट टू सीड साइज इन केस ऑफ स्टार सिंथेसिस पी सीड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर आप ये डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई फायदा नहीं है बुक में, समझ के बोल रहे हैं तो फायदा है. समझ रहे हैं ना बात? क्लियर है? समझ के बोल रहे हैं. नेक्स्ट ये है, देखिए कॉन्सेप्ट इसके पीछे इतना. मतलब ये प्लियोट्रॉपिक जीन का भी एग्जाम्पल है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, ये डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है. आप बोलेंगे डोमिनेंस का कैसा हुआ ये? बी जीन विथ रेस्पेक्ट टू सीड शेप की अगर मैं बात करूं, सीड शेप की, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस. ये बहुत डेंजर है क्वेश्चन. फिर स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्लियोट्रॉपी भी बोल सकता हूं मैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोल सकता हूं, डोमिनेंस भी बोल सकता हूं. वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है वो देखना पड़ेगा मुझे. अब ये देखिए, आप डोमिनेंस कैसा बोल रहे हैं? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी. सिर्फ शेप की बात कीजिए, हाँ, साइज की मत बात करो. शेप बोलो, राउंड, रिंकल और राउंड, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है. Hence it is a case of dominance. फिर ये वाला एग्जांपल ले लो, कैपिटल बी स्मॉल बी
कैपिटल बी स्मॉल बी, आप बोलिए विथ रेस्पेक्ट टू साइज की बात कीजिए। हाँ, लार्ज, स्मॉल, intermediate. When none of the parental character appears, we call it incomplete dominance. आगे समझने ये भी क्लियर है ना? इसके बाद एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसमें तो जो है 100% बच्चों को डाउट रहेगा, 99 नहीं, 100% बच्चों को डाउट रहेगा। बेटर आप बुक ओपन कर लेंगे और उसको समझ के लिखेंगे वहां पर। पेज नंबर 78 थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 78 थर्ड पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है देखिए। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन autonomous feature of a gene. Dominance is not an autonomous feature of gene. Dominance is not an autonomous feature of gene or the product for which it has information. ये एक पॉइंट है। उसके आगे क्या लिखा है? डोमिनेंस इज डिपेंड ऑन द जीन प्रोडक्ट। डोमिनेंस इज डिपेंड ऑन द जीन प्रोडक्ट। डोमिनेंस इज डिपेंड ऑन द जीन प्रोडक्ट। ये एक पॉइंट दिया है पैराग्राफ में। और एक पॉइंट क्या दिया है? More than one phenotype may be influenced by same gene. More than one phenotype may be influenced by same gene. So these are the 3 points given in this paragraph. Let's focus on these 3 points, okay? So first point क्या है? Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product for which it has information. इसका मतलब क्या होता है? Dominance is not an autonomous. Autonomous का मतलब independent. Dominance is not a independent feature of gene. Dominance is not the independent feature of the gene or the information it has. मतलब डोमिनेंस जीन अकेले से नहीं होगा। डोमिनेंस जीन अकेले से नहीं होगा। अच्छा, बड़ा भाई डोमिनेंस क्यों दिखाता है? क्या है ओपिनियन आपका? क्योंकि उसको पेरेंट सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो डोमिनेंस दिखाता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो सेम ऐसे ही जीन डोमिनेंस दिखा रहा है, ये इसका इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है। उसको कोई कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहे हैं? जीन प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है। जीन का प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है। जीन इज नॉट independently dominant. Gene is not independently dominant. It is the gene product which make it dominant. If you have only capital T, you are not going to become tall. जस्ट आपके पास कैपिटल टी है तो टॉल हो जाएंगे क्या? नहीं, वो कैपिटल टी से जो एंजाइम बनेगा ना, वो टॉल बनाएगा आपको। जस्ट कैपिटल टी टॉल नहीं बनाएगा। सब लोग क्यों सोचते हैं कैपिटल टी आ गया तो टॉल? ओके, कैपिटल टी इज द जीन विच इज कंट्रोलिंग टॉलनेस, बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली। एल्डर ब्रदर इज डोमिनेंट, हम मानते हैं बात को, लेकिन
वो डोमिनेंट क्यों है ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज पेरेंट्स सपोर्ट हिम। द सेम वे द जीन इज डोमिनेंट। व्हाई द जीन इज डोमिनेंट? बिकॉज the gene product, because of the gene product, because of the enzyme it make। समझ में आया आपको? डोमिनेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ ए जीन। अकेला कैपिटल टी कुछ नहीं कर सकता है। डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन और द प्रोडक्ट फॉर विच इट हैज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से भी कुछ नहीं होता डोमिनेंस। समझ गए? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो क्या डोमिनेंस बन जाएंगे? नहीं बन सकते, जब तक कि उसको सपोर्ट करना कोई। तो ये यहां पे सपोर्ट करने वाला कौन है? जीन का प्रोडक्ट है। और जीन प्रोडक्ट क्या है? एंजाइम है। चलो दोनों पॉइंट समझने आ गए? क्लियर है? अब डाउट नहीं बचेगा इसमें कभी भी। क्या रहेगा डाउट? ये स्टेटमेंट्स आएंगे एग्जाम में ऐसे। अब स्टेटमेंट आ गया, डोमिनेंस इज ए इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ द जीन, डोमिनेंस इज ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। डोमिनेंस इज नॉट, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन। समझ में आ गया? स्टेटमेंट के लिए रेडी रहिए बस। और ये थर्ड पॉइंट बता रहा है, मोर देन वन फिनोटाइप मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाई सेम जीन, इट इज ए केस ऑफ प्लियोट्रॉफी। इसी को तो प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। वर्ड नहीं यूज किया है एनसीईआरटी में यहां पर प्लियोट्रॉफी, लेकिन कॉन्सेप्ट दे दिया है। प्लियोट्रॉफी वर्ड नहीं यूज किया, आगे चैप्टर में और कहीं पे यूज करेगा प्लियोट्रॉफी वर्ड। फिनाइलकीटोनुरिया में आगे भी पढ़ेंगे हम प्लियोट्रॉफी, वहां पर भी आएगा फिनाइलकीटोनुरिया। लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, अगर एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं देन इट इज ए केस ऑफ प्लियोट्रॉफी। ठीक है? तो इतना सारा आपको पढ़ना है। देखिए और एक चीज यहां पे एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं। मल्टीपल अलील टू फाइंड आउट जीनोटाइप, टू फाइंड आउट जीनोटाइप्स फॉर मल्टीपल अलील। अगर मल्टीपल अलील का कभी क्वेश्चन आ गया, आई जीन के कितने जीनोटाइप हैं बोले तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं 6 जीनोटाइप हैं। ठीक है ना? अगर एग्जाम में क्वेश्चन बदल के दिया, सपोज देयर इज ए जीन विच इज हैविंग 5 मल्टीपल अलील एंड इट विल कंट्रोल हाउ मेनी जीनोटाइप, इट मेक हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप, तब जो है फार्मूले की जरूरत है वहां पर। टू फाइंड आउट जीनोटाइप्स फॉर मल्टीपल अलील, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 करिए। चलिए एक जो है एक एग्जाम्पल लेके कर लेंगे। ठीक है? आई जीन के कितने फॉर्म है? आई जीन फॉर ब्लड ग्रुप, हाउ मेनी फॉर्म्स? 3 फॉर्म्स, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। देखिए कितने जीनोटाइप आते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलील, 6 हो गया ना। मतलब आई जीन के कितने जीनोटाइप हैं? 6 जीनोटाइप हैं। आई जीन के कितने जीनोटाइप हैं? 6 जीनोटाइप हैं। वो कैसा? आई ए, आई ए, आई ए स्मॉल आई बी, आई बी स्मॉल आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। हाउ मेनी टोटल जीनोटाइप्स? 6 जीनोटाइप्स है ना। तो बस n यूज कर लीजिए आप। n मतलब नंबर ऑफ अलील। क्वेश्चन ऐसा बन चुका है एक बार, ए जीन इज हैविंग 5 अलील्स, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल फ्रॉम दिस। तो n इंटू n प्लस 1/2 करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? ओके। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आई थिंक यू ऑल ऑफ नो एग्जाम आपके कब है? मंडे के दिन है एग्जाम। तो प्रिपेयर करना अच्छे से। ठीक है? आपको कल प्रिपरेशन डे के लिए जो है आपको एग्जाम नहीं रखे, आप प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। ठीक है? क्योंकि चैप्टर अब लॉन्ग होते जा रहे हैं। यहां तक अच्छे से एनसीईआरटी नोट्स और क्वेश्चंस कर लीजिए बायो में।
Okay, we'll stop here. Thank you.